میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں مقام۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک غلام کو اپنے ساتھ اٹھایا، غلام زادے کو، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا اور دنیا کو بتایا کہ میں غلاموں کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والے اور انسانیت کے احترام کی کہانی چھیڑنے والے اس بات پہ غور کریں کہ انسان کا وقار اور انسان کی عزت اور آبرو اس زمانے میں اس دنیا پہ اگر قائم کیا تو وہ آمنہ کے لال نے قائم کیا، جب دنیا کی منڈی میں غلام فروخت ہو رہا تھا۔ غلام کی یہ حیثیت بھی نہیں تھی کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھونک رہا، آقا اس پہ کوڑے مارے۔ گزرنے والا پوچھتا ہے غلام نے کیا قصور کیا؟ کہا میرے جوتے میرے اذن کے بغیر اس نے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے ہیں۔ وہ غلام کہتا ہے جناب جوتے خراب ہو رہے تھے میں نے اس لیے رکھے ہیں۔ آقا اس کی یہ دلیل ماننے کے لیے تیار ہے۔ غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محروم ہے، اقبال کہتا ہے جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہو کی آنکھ ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے جوتے میرے پوچھے بغیر اس نے اٹھائے؟ یہ خوئے غلامی بھول گیا، اپنی اوقات بھول گیا، میں اس کو اوقات یاد رہا۔ غلام کی یہ حیثیت بھی نہیں کہ آقا کے جوتے بھی اس کے اذن کے بغیر اٹھا سکے۔ وہی غلام جب دامن اسلام میں آتا ہے اور اسلام غلاموں کو عزت اور آبرو دیتا ہے، معراج سے پلٹے حضور فرمایا اے بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار دی تھی ہوگی اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش میں نہیں پہنچ گیا ہوگا کہ جس کو یہ حیثیت بھی نہیں ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ غلاموں کو عزت اور غلاموں کو آبرو اگر دی ہے تو حضور نے دی ہے۔ انسانیت کا وقار حضور کے دم سے پایا اور حضور نے انسان کو جو ہے اس کے بنیادی فراہم کیے۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، بات ادھر چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رات کا کچھ لمحہ بیت چکا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہوا کیوں؟ فی بعض الحاجہ، مجھے حضور سے کچھ حاجت تھی، کچھ غرض تھی۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا ہے کہ اس چوکھٹ سے بھاگنا نہیں چاہیے، لیکن تو یوں تے ہیں میری آسانہ سہارا، دس کنو کرا جتنی نہ کریں۔ اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ، پہلا شخص امام نبہانی کہتے ہیں جس نے استغاثے کا، توسل کا اور نداء کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ۔ اس سے قبل امت میں اس عنوان سے اختلاف نہیں تھا۔ حضرت شیخ محقق لکھتے ہیں تتمہ مدارج النبوہ میں کہ ہزاروں موضوعات پہ اختلاف ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کم از کم میرے دور تک حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اب یہ اختلاف ہے تو یہ ان کے بعد پیدا ہوا، تو یہ بعد میں سارے فتنے نمودار ہوئے، ورنہ لوگ جھولیاں پھیلا کے اس دہلیز سے مانگا کرتے تھے اور ان کی جھولیاں خیرات سے بھری جایا کرتی تھی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچھا صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ حضور کی دہلیز پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، بس دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، حضور خود آتے تو حاجت کہتے۔ لیکن اگر ایمرجنسی حالات ہوتے، ناگزیر صورتحال ہوتی تو پھر دستک دے لیا کرتے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جس کو امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا ہے، کانت تقرأ ابواب النبی بالاظافر۔ پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ، ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے۔ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مفہوم کیا ہے؟ شرح شفا میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم مقصد کیا ہے؟ اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے بعد میں نے پلکوں سے در یاد پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ سعادت صدیقی نے ایک تصور باندھا ہے لیکن عملاً در حبیب پہ اس نے یوں دستک دی نہیں ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھا دیا، اپنی انگلیوں کے پوروں سے حضور کی دہلیز پہ دستک دے۔ کہتے ہیں حضور تشریف لے آئے، حدیث ترمذی کی، لیکن حال یہ تھا کہ حضور نے چادر کی بکل ماری ہوئی تھی اور میں نے اپنی حاجت کہی، میری حاجت پوری ہو گئی، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ چادر کے اندر سے حرکت کا احساس ہو۔ جب میری حاجت پوری ہو گئی، مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا
मैंने कहा हुजूर ये चादर के अंदर क्या है? फकाशफा, हुजूर ने चादर को खोल दिया। फाइज अल हसन वल हुसैन अला वरके, एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे, एक से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे। कहा ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे मालिक इससे भी प्यार कर। मोहब्बतों का एक और अंदाज देखिए, प्यार की एक और कहानी देखिए। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इनका घर मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर था। माँ थी बूढ़ी और उनकी आरज़ू होती थी कि शाम और रात की नमाज़ों में एक करीब नमाज पढ़े। मस्जिद नबवी से कुछ फासला था। हजरत हुज़ैफा की आरज़ू ये होती कि मैं अगर इन औकात में हुजूर के पीछे जाके नमाज पढ़ूं तो रश थोड़ा सा कम होगा और मैं हुजूर से मुलाकात आसानी से करूंगा। लेकिन माँ की इजाजत के बगैर नहीं आते। ये फलसफा लोगों ने बाद में तराशा कि माँ फारिज में मुब्तला और बेटा तबलीगी चिल्ला काटने गया हुआ, माँ बाप को जरूरत और बेटा जिहाद पे चला गया, माँ बाप तड़प रहे हैं और बेटा पीर के आस्थाने में जाके झाड़ू दे रहा है। नहीं, पहला मुर्शिद माँ है, पहला पीर माँ है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मैंने अपनी अम्मी के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा अभी तेरे हक अदा करूं या अल्लाह के हक अदा करूं? अपने हक तू मुझे माफ कर दे, रब को मैं मना लेता। माँ ने कहा बेटे जा। हजरत बायज़ीद कहते हैं कि मैं 12 साल जंगलों में घूमता रहा, उसकी तलब में जंगलों की खाक छानता रहा। 12 साल के बाद एक दिन बुस्ताम के करीब से गुजर रहा था, दिल में ख्याल आया चलते चलते माँ को सलाम कर जाऊं। दरवाजे पर दस्तक देने लगा, इस एहसास ने हाथ रोक लिया कि सारी जिंदगी माँ को सुख तो दिया नहीं तो दुख भी क्यों दिया। तो कहते हैं मैं रुक गया और दरवाजे पर बैठ गया, चलो माँ जब कभी बेदार होगी तो मैं दस्तक दे लूंगा। कहते हैं जब सहरी का वक्त हुआ तो अंदर से जो नाली आती थी उधर से पानी आया, मैं समझ गया मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है। मैंने दरवाजे को हाथ मारा, दस्तक दी। माँ ने कहा बेटे बायज़ीद ठहरो मैं आती। माएँ तो बेटों के दस्तक के अंदाज से भी जानती होती हैं ये कौन सा बेटा दस्तक देगा। ये परसों मैं ओस्लो के एयरपोर्ट पे खड़ा था कि वहाँ 2 इंडियन लड़के थे, तो मैं चूंकि वहाँ सारे इंग्लिश स्पीकर थे और मैं उनकी आवाज़ सुन के उनके पास रुक गया। तो बस बैठ के वहाँ तो बातों बातों में उन्होंने कहा जी 19 साल के बाद हम वापस जा रहे हैं तो शायद हमें कोई पहचाने भी ना। तो मैंने कहा और कोई पहचाने या ना पहचाने, माँ तो कदमों की आहट से भी पहचान ले कि मेरा बेटा आ रहा है। अल्लाह ने उसके सीने में एक ताल्लुक ही ऐसा दिया है, माँ का प्यार ही ऐसा है, माँ की मोहब्बत ही ऐसी है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं मैंने दस्तक दी तो माँ ने कहा बेटे बायज़ीद ठहरो मैं आती। कहती है माँ ने दरवाजा खोला, मेरे बिखरे हुए बाल, उजड़ी हुई हालत, फटे हुए कपड़े, परागंदा सूरत, तो माँ ने मुझे देख करके ना यूं हाथ उठा लिया और कहा मालिक मेरा बेटा बायज़ीद तेरी तलब में निकला था, तूने अभी तक इसे अपना कुर्ब नहीं दिया। हजरत बायज़ीद कहते हैं 12 साल की रियासतों से जो नहीं मिला था माँ के उठे हुए हाथों से मिल गया। मैंने कहा मालिक मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू कहाँ? इधर माँ की दुआ है उधर ही अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो। आप जानते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए तो कहा रब्बे आरिनी मालिक मैं तुझे देखना चाहता, तो जवाब क्या मिला था? लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। तकाजा पहन बढ़ता गया तो कहा अच्छा इस पहाड़ को देखो, अगर ये अपनी जगह पे ठहरा रहा तो तुम मुझे देख लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी मालिक मैं तेरी तजल्लियात दरख्तों से देखने का आदी और अब मुझे कहा जा रहा है पहाड़ को देखो। आप जानते हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र में एक कप्ती को थप्पड़ मारा था तो वो आपके जलाल की ताब में ला सका और मर गया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा। जब शहर मदीन के करीब गए तो देखा कि एक चश्मे पर एक कुएं पर लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, तो 2 लड़कियां हैं जो पर्दे में एक समत खड़ी और उनके जानवर भी साथ खड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इन्होंने अपने जानवरों को पानी पिलाना है, लेकिन मर्दों के हुजूम की वजह से, हया की वजह से आगे नहीं आ रहे। आपने उनके जानवर हांके और जाके उनको पानी पिलाया, फिर जानवर उनकी तरफ गए। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ साथ पीछे आ जाएं, तुम बड़े अच्छे शख्स हो, अपने वालिद से हम तुम्हें मिलवाना चाहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ चले गए। जब उनके घर पहुंचे तो वो घर था हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा की पेशानी में चमक देखी और अपनी एक बेटी हजरत सफूरा का उनके साथ निकाह कर दिया।
कुछ अर्सा गुजरा, मिस्र के हालात ठीक हो गए, तो मैं जाओ वापस चले जाओ। हजरत सफूरा साथ हैं, रात की तारीकी है, मौसम है सर्दी का, और हजरत सफूरा थी भी हमल से, तो दूर आग चमकती हुई दिखाई दी, तो कहा अपनी जोजा कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए आग लेके आता हूँ। जब वहां गए तो वो आग नहीं थी, दरख्त चमक रहा था, और दरख्त से आवाज आई कि मूसा मैं तुम्हारा रब अपने नाने होता है। ये मुकद्दस बात है। गए थे आग लेने के लिए, लेकिन पैगंबर ही मिले, अल्लाह के जलवे दरख्त से देखे। आज जब दोबारा तकाजा किया तो वाकई पहाड़ को देखो, अर्ज की मालिक मैं तो तेरे जलवे दरख्त से देखने की आदत रखता हूँ, और अब मुझे पहाड़ की जानिब मबसूर किया जा रहा है। कहा मूसा जब घर से चले थे तो माँ को क्या कहा? जब हजरत मूसा घर से निकले, माँ ने दामन पकड़ लिया, बेटे मैं तुझे तलाश करना चाहूँ तो कहाँ ढूंढूं? तो कहा उतलुबनी इलल जबल, मुझे पहाड़ पे ढूंढ लेना। कहा उस वक्त से तेरी माँ की निगाहें पहाड़ पे जमी हुई, और जिधर माँ की निगाह होती है वही जगह अल्लाह की जलवागाह होती है। अगरचे तुमने मेरे जलवे पहले दरख्त से देखे थे, लेकिन अब तुम्हारी माँ की नजर उधर लगी हुई है, अल्लाह का जलवा भी उधर से ही लोगे जिधर माँ की नजर लगी हुई है। तो माँ अल्लाह की रहमतों का एक रूप है, अल्लाह ताला के। यार मैं और आप क्या, मेरी और आपकी हैसियत और औकात क्या, इस रिश्ते के लिए तो हुजूर भी तड़पे। हजरत इमाम सयूती ने हाविल फतावा के अंदर लिखा है कि हुजूर एक दिन शाह की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आए, ता हद नजर सहाबा हुजूर के मुंतज़िर थे। जब हुजूर को देखा तो अदब से खड़े हो, आका करीम की आंखें छलक पड़ी और ठंडी आह भरी रोते हुए कहा, लो अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या उनमें से एक ही मौजूद होता। इंसान ने दुखों का दौर देखा हो, बाद में अल्लाह खुशहालियाँ दे दे, तो इंसान इस बात की आरज़ू जरूर करता है कि मेरे माँ बाप ने मेरी अज़ियतों का और दुखों का वो ज़माना देखा है, आज अगर वो होते तो कितने खुश होते। दौलत के रेल पेल देखते, आंगन में बच्चों की बहार देखते, मुझे इज्जत और वकार की मसनद पर बैठा हुआ देखते, मेरे सर पे वकार और शान की और शौकत की सजी हुई दस्तार देखते तो कितने खुश होते। इंसान आरज़ू करता है। जब हुजूर इस दुनिया पे आए थे तो वालिद का साया सर पे नहीं, 6 साल की उम्र है कि अब वबा की रेत के टीले हैं, और हजरत आमना को सख्त बुखार हो गया। 3 नफूस पे मुश्तमिल काफिला, हुजूर, हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा, हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत आमना समझ गई कि ये मेरा बुखार जानलेवा साबित होगा। उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा मेरे बेटे को बहिफाजत अमीर कुरैश तक पहुंचा दें। फिर हुजूर के सर पे हाथ रखा। हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा कोई बात करना चाहती थी, लेकिन ज़ब्त के बंधन टूट गए, आंखों में आंसू तैरने लगे। वो मुश्किल चंद बातें की जिसको मुअर्रिखीन ने महफूज किया। आपने कहा बेटे हर नई चीज में पुरानी हो जाना है और हर बाकी में फना हो जाना। मैं भी जा रही हूँ जिक्रा बाप व वलद तो, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा, इसलिए कि तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ दे रहा है। जिन माओ के बेटे अच्छे हों उन माओ का नाम मिटा नहीं करता। ये आखिरी लफ्ज ने हज़रत आमना के, उसके बाद उनका विसाल हो गया। हुजूर माँ से लिपट गए और बार बार कहते थे अम्मी आप बोलती नहीं, लेकिन खामोश हो गया, चमन बोलता। फिर वही माँ की तदफीन की, मट्टी अंधेरी ऊपर छोटे छोटे पत्थर रख दी, और हो भी क्या सकता था। जब हुजूर मदीने में बात कर रहे हैं, अब अगर हुजूर की माँ का इंतकाल होता, फरिश्ते जन्नत से फूल लेकर के आते, कितने सहाबा जनाजे में होते, लेकिन मुसाफरत, तन्हाई और गुर्बत, छोटे छोटे पत्थर रखते। क्या किसी ने कहा तुझे किन फूलों से हम कफन दें, तू जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। अब उसके बाद हुजूर अपने दादा मोहतरम के पास आ गए, 8 साल की उम्र, उनका इंतकाल भी हुआ। फिर उसके बाद आगे सिलसिला बड़ा आमुल हुज़्न भी आया, ताइफ के बाजार भी आए, मक्के की गलियां भी आई, ओहद की सख्तियां भी आई। सारे मुश्किल मराहल हैं। लोगों ने पत्थर भी मारे, कांटे भी बिछाए, गड़े भी खोदे, आवाजें भी कसे, कपड़े भी डाले, लेकिन अब वो वक्त है, हुक्म नाज़िल हो चुका है, खबरदार मेरे नबी के लहजे से तुम्हारा लहजा भी ऊंचा नहीं होना चाहिए। अब हुक्म हो चुका है, मेरे नबी से मसला भी पूछना है तो पहले घर जाओ, फिर कोई चीज लो, फिर फकीर ढूंढो, फिर खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ, तुम्हें पता चले कितनी ऊंची बारगाह में आ गए।